Hello students, welcome back. Children, we are going to start with the section 4 today, and as you can see it on your board, it's the history of novel. Children, when you used to study our 11th standard portion, we had the history of English drama. Now 12th standard children, these people have included the history of novel. Now novels, children, we have many times come across this word, which is actually quite famous among the reader class, people who are very avid of reading different things. अच्छा, तो आज हम लोग जानने वाले हैं बच्चों लोग कि नॉवल का हिस्ट्री क्या था, ये सब ओरिजिनेट कैसे हुआ था. अच्छा, स्टार्टिंग के नॉवेल्स कौन से थे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में कब इसका ओरिजिन हुआ है, और अभी का जो नॉवल का मतलब फाइनल डेवलपमेंट जो हम लोग को दिखता है, it has come through evolution or gradual improvement process that we have, children. Okay, so this topic is just giving you an introduction about the history of novel. फिर इसके 4.2 4.3 हम लोग कुछ novels पढ़ने वाले हैं which will be very interesting, children. Okay, now to begin with, I would actually say like this, that the 18th century, okay, we are talking about the 18th century, which has actually gifted us a very important type of English literature. In fact, not one, children, we have been gifted with many of them, and many of these types of literature, children, they have got their traces in the ancient classical heritage. Okay, now what it means, children, like बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स है जिसको हम लोग एंशिएंट टाइम से आज तक देखते हैं, लेकिन देयर आर दीज टू न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, चिल्ड्रन, जिसका कोई निशानी आपको एंशिएंट क्लासिकल हेरिटेज में नहीं मिलेगा. अच्छा, इसमें से द फर्स्ट वन, चिल्ड्रन, दैट वी हैव, इट्स व्हाट्स नोन एज द पीरियोडिकल एसे, और दूसरा जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लोग, इट्स ऑल मेंट अबाउट द नॉवेल्स. ओके, अच्छा, ज्यादातर बच्चे लोग जो नॉवल की बात करते हैं हम लोग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉवल, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द 18th century, we can say, and the intellectual development that was taking place. Okay, where it's like, children, intellectual, then the sentimental, then we also have the word that is called a realistic plane, and it has tried to instruct the readers, and it should help them to be more purposeful and virtuous life. अच्छा, नॉवल के ओरिजिन से लेकर आज तक बच्चों लोग, novels have been gaining lot of popularity. That means, children, we can say that novels are very popular from the time of its origin till now, and gradually उसका popularity बच्चों लोग बढ़ते जा रहा है. And I feel that, children, that novels are one of the most dominant literary genres that we have. So it's a category of literature, children, which is the most dominant that they say. ठीक है. अच्छा, अभी आपको लगेगा सर ये सब तो ठीक है, लेकिन what do you exactly mean by a novel? So let's see, children, what exactly do you mean by a novel? So we begin like this, that a novel is relatively a long narrative fiction. Fiction मतलब बच्चों लोग क्या होता है कि like it's imaginary. अच्छा, और ये क्या डिस्क्राइब करता है? तो it tries to describe intimate ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. ओके, लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग नरेट करते हैं, बट दैट इज बेसिकली नॉट इन अ पोएट्री फॉर्म, चिल्ड्रन, इट विल बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज. और अभी का जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, चिल्ड्रन, नॉवल, ये आपको पता है बच्चों कहां से ओरिजिनेट हुआ है? तो द वर्ड नॉवल हैज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ इटालियन वर्ड, एंड व्हाट्स द वर्ड, चिल्ड्रन? इट्स नोवेला. और नोवेला का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? We have this word that is called a new. जैसे हम बोलते हैं ना नॉवल कोरोना वायरस करके बोलते हैं, नॉवल मीन्स न्यू, चिल्ड्रन. अच्छा, अभी नॉवल का काम क्या होता है बच्चों लोग? कि पूरे के पूरे स्टोरी को नरेट करना. क्या काम रहेगा? पूरे के पूरे स्टोरी को नरेट करना, एंड इट विल एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स लाइक टाइम हो, प्लेस, नेचर, द पीपल दैट आर इन्वॉल्व देयर, चिल्ड्रन. ओके, देयर माइंड्स, उनके एक्शंस क्या होते हैं, जेस्चर्स, उनके एक्टिविटीज, और उस वक्त का सोसाइटी कौन से टाइप का था ना बच्चों लोग, उसका एक इमेजिनरी पिक्चर क्रिएट किया जाता है. अच्छा, novels, children, are easier to understand. जब हम लोग ड्रामा की बात करते हैं, या फिर चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट द पोएट्री,
हाँ, तो ड्रामा और पोएट्री से भी ज्यादा नॉवेल्स समझना आसान होता है बच्चों लोग, ठीक है। सो नॉवल दे हैव एडॉप्टेड द प्रोज सिस्टम चिल्ड्रन, तो जो भी लिखा जाता है इट्स नॉट इन अ पोएट्री फॉर्म चिल्ड्रन, इट विल बी इन द प्रोज फॉर्म बेसिकली, ओके। देन द नॉवल एज अ लिटरेरी जॉनर हैज हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 years। ये देखो बच्चों लोग, नॉवल का ओरिजिन 200 साल मतलब 2000 साल पुराना है। अच्छा, इसका सबसे पहला जो प्रीकर्सर था, प्रीकर्सर मतलब जो इसका जो ट्रेलर दिखा था हम लोगों को, देन इट वाज इन द फॉर्म ऑफ द कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांसेस। तभी बच्चों कुछ स्टोरीज का कलेक्शन आता था जिसको ग्रीक रोमांसेस बोलते थे। हाँ, उसका डेट क्या था बच्चों लोग, तो इट वाज इन द 2nd to the 6th century में टॉप द लिस्ट। और उसके अंदर बच्चों लोग जो इमेजिनरी, जो डिलाइटफुल, okay, and expressing love and that marvelous stories that there were there children, they actually had a very adventurous and very profoundly affected the creative writing of the next 1000 years। मतलब बच्चों लोग तभी 2nd century से लेकर 6th century के बीच में जो ग्रीक रोमांसेस के जो कलेक्शंस थे बच्चों लोग, उन्होंने आगे जाके हजारों साल तक जो लिखा जाएगा ना बच्चों लोग, उसको बहुत प्रोफाउंडली इफेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अभी जहां तक नॉवल की बात है, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन, लाइक नॉवेल्स दे मेक यूज ऑफ लिटरेरी प्रोज। हाँ, बट द अर्लियर थ्रेड्स ऑफ द जॉनर कैन बी फाउंड इन, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखें हम लोग, तो वर्जिल्स ने जो इकोलॉग्स लिखे थे, और मेलरॉयज मॉडी ऑथर, या फिर बच्चों लोग और एक राइटर थे जिनका नाम था जॉफरी चॉसर, और उन्होंने बच्चों लोग क्या लिखा था, कैंटरबरी टेल्स। हाँ, तो ये सब के अंदर आपको नॉवेल्स का थोड़ा सा निशानी मिलेगा मतलब बच्चों लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों लोग, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑथर्स के नाम मिलेंगे, और उन्होंने जो लिखे हुए बुक्स है, उनके जो नॉवेल्स है, उसका बहुत सारा एग्जांपल्स आएगा। नाउ सिंस दिस इज अ मोबाइल जनरेशन एंड वी आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद रीडिंग मच ऑफ नॉवेल्स एंड ऑल, जिनको रीडिंग का हॉबी रहेगा उन लोगों को ये सब फटाक से समझ में आएगा। नाउ दिस इज राइटर चिल्ड्रन मुरासाकी शिकुबु और शिकिबु, उन्होंने बच्चों लोग एक बुक लिखा था इन 1010 में, that is called as the Tale of Genji। Now, it's the world's first novel. Just remember, children, might be for your general knowledge as well, कि दुनिया का सबसे पहला नॉवल कौन सा था। तो मुरासाकी शिकिबु has written Tale of Genji, children, which is called as the world's first novel। अच्छा, यूरोपियन नॉवल कहां से शुरू हुआ था बच्चों लोग, यूरोपियन नॉवल, तो This is a novel children by the name of Don Quixote, और उनके जो राइटर थे मिगेल डी सर्वेंट्स, ओके। Now it was published in 2 parts children, 1605 और 1615 के बीच में 2 पार्ट्स में इसको पब्लिश किया गया था। ये यूरोप का पहला नॉवल माना जाता है बच्चों लोग, दैट इज डॉन क्विक्सोट। अच्छा, फिर आ गया था बच्चों लोग 18th century की तरफ। तभी बच्चों लोग जितने भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते थे, तो इट अट्रैक्टेड लॉट ऑफ रीडर्स फ्रॉम द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे तभी। एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज लाइक नाउ दे हैड लॉट ऑफ इंटरेस्टेड इन द रोमांसेस एंड द ट्रेजेडीज। अभी आपको पता है बच्चों लोग बहुत सारे टाइप्स के लिटरेचर होते हैं, उसमें से रोमांस एक आता है, फिर एक ट्रेजेडी होता है, हाँ, विच वर एप्रिसिएटेड बाय द अपर क्लास। मतलब क्या बच्चों लोग कि अपर क्लास सब एप्रिसिएट करता था, लेकिन फिर ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको भी धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आना चालू हो गया था। तो तभी बच्चों लोग ऐसे लग रहा था कि देयर इज अ नीड फॉर न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर। किसकी जरूरत है बच्चों लोग, देयर वाज अ नीड फॉर न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो 18th सेंचुरी के लोगों के आइडियाज को एक्सप्रेस करेगा। और तभी बच्चों लोग कैसे दे वांटेड टू फोकस ऑन रियलिज्म एग्जांपल एंड द डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स। मतलब देयर समथिंग लाइक एंथुसियाज्म, पैशन, इमेजिनेशन, ये सबसे बोर हो गए थे लोग। Now the foreground for the novel was prepared by all these factors। तो नॉवल का रास्ता तैयार हो रहा था यहाँ पे बच्चों लोग। और फिर 1740 में, कौन सा ईयर है बच्चों लोग, 1740, नॉवल ओरिजिनेटेड एज ए लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। तो बच्चों लोग ट्रेड, कॉमर्स, ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और तभी बच्चों लोग एक मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ था। और ये मिडिल क्लास के जो लोग थे ना बच्चों लोग, now a class of people had emerged to occupy an elite status। elite मतलब बच्चों लोग थोड़ा sophisticated बोलते हैं ना, high fi। A realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and they were regarded by them as a respectable reading material।
तो बच्चों ये नॉवेल्स है ना बच्चों, ज्यादातर ये मिडिल क्लास के लोग, उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, अच्छा उन चीजों को हाईलाइट करते थे अपने नॉवेल्स के जरिए। तो बिकॉज दिस स्टोरीज, बिकॉज दिस डिस्क्रिप्शंस, ये कॉमन लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को रिलेट हो रहा था, तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल बाय द न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल इन द यूरोप, वी कैन से। ओके, और फिर शुरुआत हो गई थी बच्चों लोग यहां से हमारे नॉवेल्स की। अच्छा, so we can say children that novel as a form of literature have been designed for both, which is like voice the aspirations of the middle class और एक लोअर क्लास बच्चों लोग, एंड मीट देयर लॉन्गिंग्स। जो चीजें हम लोग को नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलते बच्चों लोग, उनको हम लोग कभी कभी बुक्स के जरिए उसको डिजायर को हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो it's the aspirations of the middle class and the lower class children which have actually found a lot of voice in the novels। और तभी बच्चों क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो मशीन्स का डेवलपमेंट होते जा रहा था, और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे तो वो लोग रीडिंग्स में, डिस्कशंस में, ओके, बुक्स के बारे में बात करते रहते थे। अच्छा, उससे पहले बच्चों हमारे पास ड्रामा और पोएट्री तो ऑलरेडी था, लेकिन दे वर फेडिंग अवे, मतलब कम होते जा रहा था। अच्छा, अभी नॉवेल का फायदा क्या था बच्चों लोग कि उनके अंदर पोएट्री और ड्रामा का भी कुछ फीचर्स मिलता था, और उसमें हमने कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए थे। सी वेरी नाइसली चिल्ड्रन कि ड्रामा और पोएट्री धीरे धीरे फेड होते जा रहा है, एक नया लिटरेचर का फॉर्म आ रहा था जिसको हमने नाम क्या दिया है, नॉवेल्स। नॉवेल्स क्या करता था कि ड्रामा और पोएट्री के थोड़े फीचर्स रखता था, और उसके साथ में उन्होंने कुछ नए फीचर्स ऐड किए थे, और दिस वाज प्रोमिनेंट फॉर्म इन द 18th century and onwards to encompass the bachelor social, political, which is like cultural happenings and scientific progress, which is all it found some place in the novels children। okay, अच्छा, और फिर अभी आएगा एक बहुत बड़ा लिस्ट चिल्ड्रन इन नॉवेल्स के बारे में। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द नेम्स, इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गूगल आउट, और कभी आप किंडल पे वगैरह सब बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो बच्चों लोग। तो जॉन बुनियन चिल्ड्रन, ही हैज रिटन अ नॉवेल कॉल्ड एज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। या फिर ओरोनोको बाय एफ्राबैन, दैट्स इन द ईयर 1688। okay, then there was this colorful tradition of the English novel was followed by Daniel Defoe। अच्छा, उन्होंने कौन से बुक्स लिखे थे बच्चों लोग, रॉबिन्सन क्रूसो, एंड देन देयर वाज दिस मॉल फ्लैंडर्स। अच्छा, फिर जोनाथन स्विफ्ट का नॉवल तो पता है बच्चों हम लोगों को, दैट इज गलिवर्स ट्रैवल्स, व्हिच इज अ फेमस सटायर। सटायर इज लाइक टू मेक फन ऑफ समथिंग। अच्छा, 18th century के और भी कुछ नॉवेल्स का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, सैमुअल रिचर्डसन, पैमेला, और वर्चू रिवॉर्डेड, एंड क्लैरिसा, बोथ which were actually epistolary मतलब लाइक लेटर्स या फिर कम्युनिकेशन के नॉवेल्स होते हैं। फिर आते हैं बच्चों लोग हेनरी फील्डिंग। अच्छा, देन वी हैव गॉट लॉरेंस स्टर्न, एंड वी गॉट टोबियस स्मॉलेट, एंड द ट्रेडिशन वाज एनरिच्ड बाय मेनी ऑफ अदर स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट सच एज, और भी ये सब नाम सुने आपने बच्चों लोग, चार्ल्स डिकन्स, देन वी हैव गॉट वॉल्टर स्कॉट। अच्छा, देन वी आल्सो हैव गॉट नैथनियल हॉथर्न, देन हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी। अच्छा, वी गॉट विल्की कॉलिंस एंड एच.जी. वेल्स। अच्छा, 20th सेंचुरी में कुछ मॉडर्न टॉपिक्स ने कुछ इनोवेटिव स्टाइल्स और टेक्निक्स यूज करके आई थिंक नॉवेलिस्ट के जो एंगल से उसको और थोड़ा वाइड करने की कोशिश की थी। तो अकॉर्डिंग टू देम चिल्ड्रन वी गॉट E.M. फॉस्टर, देन वी गॉट जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉर्नर, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑवेल, वी गॉट ग्राहम ग्रीन, D.H. Lawrence, फिर विलियम गोल्डिंग एंड एंथनी बुर्जेस। Now they widened the entire circumference of the genre by writing। अभी नॉवेल्स में इन्होंने बच्चों लोग कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया था पता है आपको? पॉलिटिकल चीजें आ गई थी, सोशल चीजें आ गई थी बच्चों यहाँ पे, इवन सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मॉडर्न इश्यूज इन देयर नॉवेल्स। जैसे बच्चों लोग इंडिया से सलमान रश्दी, अच्छा, V.S. नॉयपॉल, दैट इज त्रिनिदाद, फिर कजुओ इशिगुरा, दैट इज फ्रॉम जापान, एंड मेनी अदर्स। अच्छा, और बच्चों लोग ये सब में पता है वुमेन नॉवेलिस्ट जो थे, दे ऑल्सो, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है औरत लोगों का, वो भी हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते बच्चों लोग। जैसे कि द नॉवेल ऑफ मैनर्स, दैट इज एवेलिना, जो किसने लिखा है, फ्रांसिस बर्नी ने। और देन वी गॉट गॉथिक नॉवेल्स बाय एन रैडक्लिफ। गॉथिक मतलब बच्चों ये सब मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, या फिर साइंस के ऊपर बेस्ड जो नॉवल है फ्रैंकनस्टाइन,
जो लिखा किसने, मैरी शैली. They were considered as the landmark novels. अच्छा, फिर बच्चों लोग, we have got Jane Austen has been ruling over the minds of the people through her novels. फिर Bronte sisters, Emily and Charlotte, they have created their own place of their incomparable works. जैसे कि The Wuthering Heights and Jane Eyre. Mary Ann Evans, George Eliot wrote the novels reflecting the psychological insights. Virginia Woolf, children, is a pioneer of the stream of consciousness technique in इंग्लिश नॉवल. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, मैं आपको टाइप्स ऑफ नॉवल पढ़ा रहा हूं तो आपको क्लैरिफाई करके देता हूं. फिर बच्चों लोग, आधे से ज्यादा जो हॉरर स्टोरीज थे, अगाथा क्रिस्टी राइटिंग मेनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राइम. फिर हरक्यूल पोयरट एंड मिस मैपल आर द एवरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर. तो ये उनके डिटेक्टिव स्टोरीज आते हैं. फिर हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, देन वी गॉट टॉनी मॉरिसन. अच्छा, and Alice Walker, they have elevated the tradition further to prosperity. Okay, just remember these names, children might be. अभी सवाल ये आता है कि लाइक ये सब के अंदर इंडिया का सिनारियो क्या था. तो लेट्स कम अक्रॉस चिल्ड्रन सम ऑफ द नॉवेलिस्ट फ्रॉम इंडिया. अच्छा, राजमोहन वाइफ, ये किसने लिखा है बच्चों लोग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ये मुझे लगता है इंडिया का पहला नॉवल रहेगा ना. सो इट्स अ फर्स्ट नॉवल in English written by an Indian. After that, it is marked by few morals written by Indian writers. अच्छा, either they were nationalistic virtues या फिर social and their main framework था बच्चों लोग. जैसे मुल्क राज आनंद, क्या नाम है बच्चों लोग, मुल्क राज आनंद. Then we got R.K. नारायणन, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा ना बच्चों लोग, कौन सा, एस्ट्रोलॉजर्स डे करके ना, R.K. नारायणन. Then children we got Raja Rao. अच्छा, they were the trio who prevailed in the period after that. फिर novelists like Anita Desai, Nayanthara Saigal, Arun Joshi and Manohar Malgaonkar changed the current Indian English novel through their works. फिर बच्चों लोग, more names to suggest here, Amitav Ghosh, Vikram Seth, then we got Upamanyu Chatterjee. These people have ameliorated or they have given a boost to the Indian novels in English by adding their features to it. अच्छा, recent years चिल्ड्रन जो हमने राइटर्स देखे हैं, सलमान रश्दी, स्पेलिंग मिस्टेक, अरविंद अधिगा, अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक उन्होंने लिखा था, फिर किरण देसाई एंड किरण नागरकर. नाउ द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन नॉवेल्स चिल्ड्रन has undergone a vital change since its birth and has undoubtedly very bright future. तो इंडिया में भी नॉवेल्स के लिए एक अच्छा फ्यूचर आपको दिखाई देगा बच्चों. Now, English novel has contributed much to these particular things, children, we can say. ठीक है, अभी नॉवेल्स के बारे में और इसके थोड़े फीचर्स और थोड़े एलिमेंट्स देखते हैं हम लोग. लास्ट ईयर चिल्ड्रन जब मैंने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो मैंने आपको बताया था कि उसके कुछ फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि उसका थीम होता है बच्चों लोग, फिर उसका एक प्लॉट आता है, फिर कैरेक्टर्स आते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर सेटिंग आता है बच्चों लोग. ओके, ऑल दोस थिंग्स टुगेदर. वैसे बच्चों लोग नॉवेल्स के भी कुछ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, बट बिफोर दैट लेट अस एक्वेंट आवरसेल्व्स विद नोवेला. अच्छा, कौन से लैंग्वेज का वर्ड बताया आपको मैंने, दिस इज द इटालियन वर्ड चिल्ड्रन, नोवेला. इट्स अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन व्हिच इज शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज. तो नोवेला बच्चों लोग एक ऐसा नॉवेल होता है जो नॉर्मल नॉवेल से थोड़ा छोटा लेकिन शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है. इज वेल स्ट्रक्चर येट शॉर्ट नरेटिव, और ज्यादातर ये सटायरिक होता है और रियलिस्टिक इन टोन. सटायर मतलब बच्चे लोग किसी स्टोरी के जरिए हम लोग किसी चीज का, जैसे गवर्नमेंट का काम करने का मजाक उड़ाना चाहते हैं हम लोग, तो आई थिंक देयर इज एक सीरियल आता था बच्चे लोग, ऑफिस करके. हाँ, थ्रू दैट दे शो कि लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में काम कैसे होता है. इट यूजुअली फोकस ऑन वन और इंसिडेंट विच इज with one or two main characters and takes place at a single tradition. And some of the famous novellas in English. Novellas कौन से देख लो जरा, एक लिस्ट दिया बच्चों लोग यहाँ पे. और The Heart of Darkness जो जोसेफ कॉर्नर ने लिखा था बच्चों लोग. फिर The Turn of the Screw हेनरी जेम्स ने लिखा है. Billy Budd that's हर्मन मेलविल. फिर आता है बच्चों लोग Death in Venice थॉमस मैन ने लिखा है. Seize the Day सॉल बेलो एंड पर्ल जॉन स्टैनबैक. अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक एक नॉवेल के बच्चों लोग फीचर्स या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, नॉवेल हो या फिर नॉवेला हो बच्चों लोग, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड इट्स अ वर्क ऑफ द ऑथर चिल्ड्रन व्हिच ट्राइज टू शो सम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. तो जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया हुआ इससे पहले भी कभी,
सबसे पहले आता है बच्चों लोग कि ड्रामा बनाते वक्त या फिर नॉवल लिखते वक्त पहले थीम तैयार किया जाता है। थीम मतलब बच्चों लोग वेरी सिंपल, सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब पूरा का पूरा स्टोरी। जैसे अगर आपको 2 वर्ड्स में बताना है, जैसे कि हम लोग एक आध मूवी बनाना चाहते हैं, कौन सा भी बच्चों, बाहुबली के ऊपर मूवी, तो बोले चलो एक मतलब एग्जाम्पल महिष्मती का किंगडम, वहां पे 2 भाई फिर उनकी मम्मी, एंड आई थिंक लाइक दिस इज अ स्टोरी थीम दैट वी हैव। संजू करके एक मूवी बनाना है, बोले चलो संजय दत्त की लाइफ के ऊपर हम लोग एक स्टोरी बना रहे हैं, तो बच्चों उससे हम लोग को उसका थीम पता चलता है ना। अच्छा, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स, चिल्ड्रन स्टोरी, कैरेक्टर्स, ये सब चीजें वहां से आगे जाती है। ओके, तो ये होता है बच्चों थीम। सेकेंडली चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि बहुत सारे इवेंट साथ में मिलके उसका एक थीम तैयार करते हैं ना। अच्छा, फिर उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा इनसाइड, मतलब एक कैरेक्टर के मन के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बच्चों एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है बाकी कैरेक्टर्स के साथ में। एक प्लॉट बच्चों लोग सिंपल होता है, फिर कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, कंसेप्ट इंटरवीविंग ऑफ मेनी सब प्लॉट्स। बच्चों एक आध स्टोरी में अगर आप देखोगे तो एक सिंपल प्लॉट भी होता है, कोई भी स्टोरी बच्चों लोग, या फिर कभी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। कभी अपने अगर प्रियदर्शन का अगर मूवीज देखा रहेगा बच्चों लोग, जैसे कि दे दनादन करके मूवी है, अभी उसके अंदर बच्चों लोग इतना सारा गड़बड़, फिर वो मिस्टेकन आइडेंटिटीज, कौन किसको मिलने के लिए आता है, गलती से किसको मिलता है, किसका पैसा किसको मिलता है, कौन किसका डेड बॉडी उठाने के लिए आया रहता है, अच्छा कौन किसके कमरे में घुस जाता है। बच्चों इट्स वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स, और जिस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है तो आप भी कभी सरप्राइज होते हो हाउ दे मिट बी एबल टू हैंडल। फिर बच्चों देखो, एक थीम हो गया, एक प्लॉट होता है स्टोरी का बच्चों लोग, फिर उसके अंदर हम लोग क्या फिक्स करते हैं बच्चों लोग, कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन करके बुलाता है उसको, मतलब कैरेक्टर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे। बच्चों लोग कैरेक्टर्स को तैयार करते वक्त एक छोटे से थंबनेल से, स्केच से लेकर उसके अंदर हम लोग घुस के पूरा वर्डी, हाईली डिटेल वर्बल स्केच तैयार किए जाते हैं ना। अच्छा, the important character may have been described in its every aspect by the writer. The minor characters are not given much importance. So, एक मेजर कैरेक्टर होता है बच्चों लोग और कुछ माइनर कैरेक्टर। माइनर कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, मेजर कैरेक्टर को बार बार स्टोरी में रखना पड़ता है बच्चों लोग। एंड द रीडर्स फॉलो द एक्शंस ऑफ वन मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवल। तो उसको हम लोग प्रोटैगोनिस्ट करके बोलते हैं ना, जो मेन कैरेक्टर होता है। और फिर एक we could also have is in conflict with the other character or entity or a force, internal or external, which is known as antagonist. Antagonist मतलब चलो कौन, विलन, नेगेटिव कैरेक्टर। प्रोटैगोनिस्ट मतलब जिसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। अच्छा, क्या होगा देखो चलो, थीम, उसके बाद में आता है चलो क्या, प्लॉट, उसके बाद में कैरेक्टराइज किया जाता है, फिर उसका एक सेटिंग होता है। सेटिंग मतलब चलो उसका बैकग्राउंड रहेगा पूरा, जैसे कि कौन से प्लेस का स्टोरी है, टाइम क्या था उसका, अच्छा क्लाइमेट कैसे रहेगा बच्चों लोग, वेदर क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या लोगों का, मतलब स्टोरी कहाँ पे बेस्ड है। एक स्टोरी बच्चों लोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं मालगुडी डेज करके एक स्टोरी ना, हाँ, या फिर एग्जाम्पल के लाइक कोई भी बच्चों लोग स्टोरी होता है, जैसे कि हमने एक स्टोरी बोला कि मुंबई का बैकड्रॉप लिया उसके लिए, सो दे अफेक्ट द सेटिंग। फिर बच्चों अंदर आपको हमेशा मिलेगा एक कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? कॉन्फ्लिक्ट मतलब या तो कॉन्फ्लिक्ट बच्चों इंटरनल होता है, मैं जो कर रहा हूं उसके अंदर ही मैं कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर दूसरे किसी व्यक्ति के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बच्चों लोग। अगर हीरो है तो बच्चों विलन होना बहुत जरूरी होता है। अगर एक फैमिली बहुत खुश है तो उसके अंदर एक आध वैम्प दिखाते हैं, मतलब जो एक लेडी जो पूरे सबको मतलब एग्जाम्पल प्रॉब्लम से फिर टेंशन देना चाहती है, सो दैट इज कॉल्ड एज दी कॉन्फ्लिक्ट। और फिर बाद में आते हैं बच्चों लोग लैंग्वेज, या फिर बात करने का उनका स्टाइल जो होता है वो, या फिर उसके अंदर हम लोग जो नरेशन करते हैं, या फिर एग्जाम्पल के लिए वोकैबुलरी जो यूज किया जाता है, जो फ्रेजेस यूज किए जाते हैं बच्चों लोग, हाँ। एंड इट विल बी, कभी कभी ये सब का हम लोग मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक डिवाइसेस होते हैं बच्चों जो इफेक्टिवली नरेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो बच्चों लोग ये थीम, उसके बाद में प्लॉट, फिर कैरेक्टराइजेशन, अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन वी हैव गॉट दी सेटिंग, फिर कॉन्फ्लिक्ट और लैंग्वेज का स्टाइल, ये सबको हम लोग क्या बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। And then children, finally we come to study what are the different types of novels that we have. With types of novels की बात करते वक्त children, we need to know that कि लाइक हर एक का मैं आपको एक एक की स्टेटमेंट बता रहा हूं जिससे आप याद रख सकते हो कि लाइक ये नॉवेल्स एग्जैक्टली है क्या करके। ओके, तो सपोज चिल्ड्रन द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉवल दैट वी हैव हियर, इसको यहां पे लिखा गया है रियलिस्टिक नॉवल। क्या बोलना है इसको? Realistic novel. Now when we use the word children realistic, that means we need to know that this is something which is based on reality.
अच्छा, मतलब इट्स कभी कभी उसको और एक नाम से जाना जाता है चिल्ड्रन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉवल ऑफ मैनर। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों लोग, मिक्स मोटिव्स हो सकते हैं, सोशल क्लास में रूटेड होता है। अच्छा, दे इंटरेक्ट विद कैरेक्टर्स एंड अंडरगो प्लॉजिबल एंड एवरीडे एक्सपीरियंस, मतलब लोगों का नॉर्मल हर रोज का लाइफ। दूसरा होता है बच्चों लोग पिकारेस्क नॉवल। अच्छा, पिकारेस्क नॉवल का मीनिंग क्या होता है फिर बच्चों लोग? दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ नॉवल दैट वी हैव। स्पेनिश वर्ड आता है बच्चों लोग पिकारो, विच मीन्स रोग। रोग मतलब बच्चों लोग दीज आर, रोग कौन होता है बच्चों लोग पता है? कोई भी एग्जाम्पल के लाइक बैड पीपल ना, एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट हु इज एन एक्सेंट्रिक और डिसरेप्यूटेबल पर्सन। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लाइक कोई भी विलनस कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो बेस्ड होते हैं ना बच्चों, एपिसोडिक फॉर्म करके, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड पिकर्स। तो एक आध व्यक्ति का जो बुराई दिखाया जाता है ना उसमें, जैसे कि एक आध अंडरवर्ल्ड डॉन के ऊपर मूवी बनाया गया बच्चों लोग, तो ही इज अ रोग चिल्ड्रन। ओके, तो आई थिंक लाइक मतलब जब भी हम लोग ऐसे कुछ कबीर सिंह वगैरह मूवीज देखते हैं तो दे शो हिम लाइक यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड थिंग्स ना, वेदर इट्स लाइक taking out something like which is like smoking, for example liquor, okay, womanizing, all these things are shown importance there. तीसरा आता है बच्चों लोग जिसको बोलने का रहता है हिस्टोरिकल नॉवल। मुझे नहीं लगता आपको मीनिंग बताने की जरूरत है कि किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, पीरियड विच इज अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग। आज मैं लिख रहा हूं नॉवल, लेकिन पहले किसी जमाने का कोई स्टोरी इन्वॉल्व किया मैंने वहां पे, तो चिल्ड्रन दैट विल बी नोन एज अ हिस्टोरिकल नॉवल करके बोला जाता है उसको। ओके, देन चिल्ड्रन along with that we also have the epistolary novel। क्या होता है epistolary novel? epistolary का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? that is letter। मतलब बच्चों लोग यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डेंस, ओके, या फिर डॉक्यूमेंट्स के जरिए जब कम्युनिकेट किया जाता है, ओके, डायरी के अंदर के कुछ एंट्रीज के लिए जाते हैं बच्चों लोग, कोई लेटर्स को कलेक्ट करके एक नॉवल तैयार किया जाता है, हाँ, तो उसको एपिस्टोलरी नॉवल करके बोलने का। फिर आएगा गॉथिक नॉवल। गॉथिक का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों लोग टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, कांचना वगैरह सब मूवीज आपने देखे रहेंगे। अच्छा, डूम, डेथ, ओके, डीके, हॉन्टेड बिल्डिंग्स, दे आर कॉल्ड गॉथिक नॉवेल्स। फिर एक होता है बच्चों लोग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ऑटोबायोग्राफी मतलब एक किसी का आत्मकथा जैसे बोलते हैं ना, ऑथर, लाइफ ऑफ द ऑथर। अच्छा, कभी कभी कैरेक्टर्स के नाम को अगर बदला जाता है टू अवॉइड सर्टेन डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ, इट मे और मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन। कोई कभी कभी अपने खुद का स्टोरी लिखता है बच्चों लोग, जैसे माय एक्सपीरियंसेस विद ट्रूथ, ये किसका नॉवल आता है बच्चों लोग? गांधी जी, ऑटोबायोग्राफी। देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द एलेगोरिकल नॉवल। एलेगोरी का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? हम लोग एक स्टोरी बता रहे हैं लेकिन उसका सरफेस मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन हम लोग उसके जरिए किसी सिस्टम को मतलब सिंबॉलिकली, फॉर एग्जांपल किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं बच्चों लोग, मतलब ऊपर जो स्टोरी में दिया है उसको आप ध्यान नहीं देने का, उसका जो इंटरनल मीनिंग रहता है ना बच्चों लोग, जैसे सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ एलेगोरी मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर कभी बनाया जाता है, ओके, या फिर रिलीजियस के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, हाँ, या फिर फिलोसफी। फिर एक आता है बच्चों लोग उटोपियन नॉवल या फिर डिस्टोपियन नॉवल। उटोपियन मतलब बच्चों एक ऐसा क्लास ऑफ सोसाइटी होता है जो सबसे बेस्ट, आदर्श क्वालिटी, मतलब 100% परफेक्ट, ऐसे लोगों को लेके कभी नॉवेल्स बनाए जाते हैं बच्चों लोग। ओके, स्पेक्युलेटिव फिक्शन करके बोला था उसको। एंड देन वी गॉट अ साइकोलॉजिकल नॉवल। कौन सा है? साइकोलॉजिकल नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवल का मतलब क्या होता है? इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ओके, इवन द कैरेक्टर्स में बी एक्सटर्नल एज वेल। तो साइकोलॉजी इज लाइक टॉकिंग अबाउट योर इंटरनल कॉन्शियसनेस। फिर आता है बच्चों लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बच्चों लोग विलियम जेम्स ने जो ट्रिटाइज लिखा है, एक नॉवल, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इट मीन्स द फ्लो ऑफ द थॉट्स, आपके अंदर के जो थॉट्स चल रहे बच्चों लोग, हाँ, तो आई थिंक जैसे जैसे सीक्वेंस ऑकर होते वैसे वैसे उसको नरेट किया जाता है बच्चों लोग, और एक कैरेक्टर के मन के अंदर घुस के कुछ आपको बताया जाएगा। अच्छा, देन वी गॉट बिल्डंग्स रोमन नॉवल। अच्छा, बेल्डंग्स रोमन नॉवल चिल्ड्रन इज बेसिकली इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है ग्रोथ। क्या बताया जाएगा आपको ग्रोथ के बारे में? तो बच्चों इसमें एक बायोग्राफी है, फिर ऑटोबायोग्राफी, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी बच्चों लोग फिक्शनल होगा, काल्पनिक होता है बच्चों लोग। अच्छा, और किस तरीके से जो मेन अपना कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं ना उसको, वो किस तरीके से ग्रोथ होते जा रहा है बच्चों लोग, उसका माइंड, स्पिरिट, ओके, चाइल्डहुड से लेकर
adulthood tak bachcho log. All those things are actually given a lot of importance here. Okay, now see children, I'll just explain to you कि like किस तरीके से नॉवेल्स का शुरुआत हुआ था. फिर हमने देखा बच्चों लोग कि like कौन कौन से फेमस कॉन्ट्रीब्यूटर्स है बच्चों लोग टू द फील्ड ऑफ दिस आर्ट लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ नॉवल. फिर हमने देखा कि लाइक 5 कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं नॉवेल्स के, और अभी जो मैंने आपको बताया ये सब क्या है, दिस आर कॉल्ड एज दी टाइप्स ऑफ नॉवेल्स चिल्ड्रन. तो हर एक के बारे में थोड़ा सा आप कुछ याद रखोगे. आगे जाके हम लोग जब बच्चों लोग एक्चुअल नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आप इससे और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाओगे कि लाइक ये नॉवेल्स होते क्या है. और अगर आपके पास फ्री टाइम है, एक आध नॉवल आप पढ़ सकते हो, या फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको 2-3 नॉवेल्स पढ़ाने वाला हूं, तो यू विल रियली लव दैट. ओके, so this is all about the history of novel children. See you in the next lecture with more topics coming up in English. Till then, bye everyone and take care.